Students, let's begin our today's topic with cytokinins. And as you all know, that cytokinin is another plant hormone. And cytokinins have very important role on cytokinesis. Cytokinesis means division of cytoplasm, that is known as cytokinesis. So it plays a very important role in the process of cytokinesis. And initially, it was discovered as a kinetin, and this kinetin is a modified form of adenine. This is a modified form of adenine kinetin, and kinetin which was a purine also. And first they discovered kinetin from the herring's autoclaved sperm DNA. Herring is a name, HARRING, herring, E. This is E, not A. So they discovered that kinetin from herring's sperm DNA, and kinetin does not found naturally in the plants. So in the search of same thing like kinetin, scientists find so many substances and which is very close to the structure of kinetin, which shows the same effect as kinetin shows, is like zeatin. So they isolated zeatin. This is the substance which is very much close to the kinetin in their functions. So the activities of zeatins are similar like to cytokinins activities. So that's why they isolated the zeatin from the corn kernels. कॉर्न जो भुट्टा मक्का होता है उसके कर्नल्स से ये निकाला गया, एंड कोकोनट मिल्क से एक सिमिलर सब्सटेंस उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, उसका नाम जियाटिन रखा. जियामेज इज़ अ नेम ऑफ मक्का. जो भुट्टा होता है, मक्का होता है, छल्ली जिसको बोलते हैं, उसका नेम होता है जियामेज. तो वहाँ से इन्होंने जियामेज दैट मीन्स जियाटिन जो सब्सटेंस है वो निकाला गया. तो जियाटिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क, एंड इट इज़ सिमिलर टू काइनेटिन. बिल्कुल काइनेटिन जैसा ही लगता था वर्क में. And natural occurring cytokinins are synthesized in the plant, which portions are very much active, or you can say which regions are very much active. That means वहाँ पर बहुत active cell division हो रही हो plant की. For example, वहाँ पर ये जो साइटोकाइनिन्स हैं ये पाए जाते हैं. लाइक अब कहाँ पर एक्टिव सेल डिवीजन हो सकती है? द एक्टिव सेल डिवीजन फाउंड, सपोज दिस इज द प्लांट. सो एक्टिव सेल डिवीजन you will always notice on two places, either on the top of the root tip, that means apex. तो you can say apices, shoot apices, root apices, shoot buds. यहाँ पर अगर कोई शूट है यहाँ पर और उसमें बड निकल रहा है तो वहाँ पर भी बहुत एक्टिव जो है वो सेल डिवीजन आप नोटिस करेंगे. तो इवन यंग फ्रूट्स, उसमें भी आपको सेल डिवीजन, एक्टिव सेल डिवीजन मिलेगा. तो साइटोकाइनिन्स आर नेचुरली प्रेजेंट ऑन दीज प्लेसेस. एंड साइटोकाइनिन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. तो देयर आर सर्टेन फंक्शंस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. दैट साइटोकाइनिन्स हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीव्स ऑल्सो. अगर साइटोकाइनिन्स होते हैं तो ऑब्वियसली सेल डिवीजन होता है, तो दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स. लेटरल शूट, suppose if you saw in this notes, I have just made little notes over here, small notes. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आई हैव मैंशनड ऑल द फंक्शंस ऑफ द साइटोकाइनेस दैट दे हेल्प इन द लीव प्रोडक्शन. They produce cytoplasm in the leaves. They also help in the lateral shoot growth and adventitious shoot formation. And cytokinins help overcome the apical dominance. Apical dominance means जैसे हमने पढ़ा था previous chapter में, in the case of auxins you have studied that apex keep on growing. So that is called apical dominance due to the presence of auxins over here. So it overcomes the apical dominance. That means cytokinins give the chance to grow the leaf which are lateral. This is known as lateral branching. तो ये lateral branching को भी grow करने में help करता है जो cytokinins होते हैं. तो this is opposite to the auxins, you can say. And they help in the nutrient mobilization, hence they delay the leaf senescence. What do you mean by the nutrient mobilization? That means suppose this is the plant which is you can see on your screen. So there are some nutrients present into the plant. So if this hormone helps
टू मूवमेंट ऑफ दीज केमिकल्स और यू कैन से दीज न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में जाना होता है सो दैट ये ग्रो कर सकें। तो पूरे में न्यूट्रिएंट्स को, फूड को, वॉट एवर सब्सटेंसेज आर, उनको पहुंचाने में ये हेल्प करता है। तो जब सब कहीं पर न्यूट्रिएंट ईजिली पहुंचेगा तो ऑब्वियस है डिले नहीं, सॉरी कि उसमें जो लीफ फॉल है उसमें डिले होगा। दैट मीन्स पत्तियाँ जल्दी से नहीं गिरेंगी प्लांट से, क्योंकि उनको फूड मिल रहा है, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो दे आर रिमेन इंटैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दिस इज़ अ स्मॉल account of the phytohormone that is called cytokines. And now come to the ethylene. Ethylene is the other hormone, and which is gaseous hormone. That's why it is very much important, and it is most widely used phytohormone, you can say, or PGR. I have written here PGR means plant growth regulator. So it is only gaseous hormone and it is very widely used in agriculture. So ethylene synthesis occurs in the plant in large amount under the various different circumstances, like where tissue are undergoing senescence and ripening fruits. तो जहाँ tissues senescence जिनमें हो रही हो एंड जहाँ पर फ्रूट्स की राइपनिंग हो रही हो वहाँ पर इथाइलिन बहुत प्रोड्यूस होती है प्लांट के अंदर। सो इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स और यू कैन से फ्लावर्स, लीव्स, इन सब में, क्योंकि इथाइलिन इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, क्योंकि सपोज देयर इज़ अ बास्केट, यहाँ पर अगर कुछ फ्रूट्स रखे हैं तो अगर उनके साथ में आप कुछ कच्चे फ्रूट्स, ये दीज आर द राइपेंड फ्रूट, और यहाँ पर आप कुछ अनराइप फ्रूट रख दोगे, कच्चे फ्रूट भी आप रख दोगे, तो यू विल फाइंड दैट ये जो है इसकी ग्रो, मतलब इसको जो राइप होने की है पार है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स वो जल्दी राइप करते हैं, वो स्पीड बढ़ जाती है पकने की, बिकॉज देयर इज़ अ वोलाटाइल सब्सटेंस नेम्ड इथाइलिन विच रिलीज्ड फ्रॉम दीज फ्रूट्स। तो ये पके हुए फ्रूट्स में से इथाइलिन निकलता है, वो दूसरे भी फ्रूट्स को जो बास्केट में रखे होते हैं उनको भी जल्दी से पका देता है। तो इट इज़ इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। तो फ्रूट राइपनिंग के लिए इसको बहुत जो है इस्तेमाल करते हैं। एंड सेम टाइम रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, एज वी ऑल नो कि जब फ्रूट राइपनिंग होती है तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, एंड उस बढ़े हुए रेस्पिरेशन रेट को उस तरह के दैट आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, CLIMACTIC, climactic. This is another important thing. That means the rate of respiration which increases due to the ripening of fruit. And ethylene also breaks the seed and bud dormancy. What do you mean by seed and bud dormancy? Seed and bud dormancy means suppose they refuse to open up, है ना। अगर dormancy हो गई तो आप सीड को डालेंगे तो सीड रिफ्यूज़ टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेट नहीं होगा सीड। एंड साथ में अगर बड डॉर्मेंसी है तो बड भी क्या नहीं होगी, वो भी डेवलप नहीं होगी आगे। तो इसलिए वो उनकी डॉर्मेंसी को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इफ़ यू गिव द एथाइलिन तो आप ग्रो कर पाएंगे, जर्मिनेट, सीड को भी जर्मिनेट कर पाएंगे, और जो बड है वो भी अपनी डॉर्मेंसी जो है वो रिमूव करेगी। तो दैट मीन्स कि इथाइलिन ब्रेक्स द सीड एंड बड डॉर्मेंसी एंड starts germination in peanut seeds. Basically it is observed in the peanut seeds. You know the peanuts means groundnuts, so they observe in the peanuts. And sprouting potato tubers, sprouting potato ट्यूबर्स। सपोज कोई पोटैटो है जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं और वो उसकी बर्ड्स होती हैं, आपको पता है, और वो ग्रो नहीं कर रहा है पोटैटो, दैट मीन्स वो जर्मिनेट ही नहीं हो रही, तो प्लांट कैसे आप लगाओगे। पर अगर आप इथाइलिन दोगे तो दे ब्रेक द डोरमेंसी एंड वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा पोटैटो। एंड इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट द पीटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, और यू कैन से इंटरनोड भी हैं, उनको भी इंक्रीज करता है। तो यू ऑल नो दैट पैडी क्रॉप, दैट मीन्स राइस की क्रॉप में आप सबको पता है कि वहाँ पर पहले पानी पूरा जो होता है वो एग्रीकल्चर लैंड जो होती है वहाँ पर क्या होता है, पानी भरा होता है ना ज़मीन पे, और उसके बाद उस पर से पैडी क्रॉप निकलता है। तो पैडी क्रॉप का क्या होता है कि अगर ये पिट्यूल मीन्स ये चीज़ जो है, अगर ये लंबी नहीं होगी तो प्लांट पानी में रहेगा, और पानी में रहेगा तो आपको पता है सड़ जाएगा ये, तो ये इसको इलोंगेट कर देता है, ये लंबे से हो जाते हैं स्टेम, इसको पिट्यूल कहते हैं। और यहाँ पर फिर वो लीव्स पानी के बाहर रहती हैं, क्योंकि पैडी क्रॉप में सभी ने धान लगाते हुए देखा है वो पानी में ही लगते हैं, तो दे कैन इलोंगेट द पिट्यूल। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इथाइलिन, दैट मीन्स ऑल्सो हेल्प रूट ग्रोथ एंड रूट फॉर्मेशन। रूट की ग्रोथ के लिए भी वो हेल्प करता है डिफरेंट प्लांट्स में। अगर कोई भी प्लांट है तो इट विल हेल्प इन रूट फॉर्मेशन। तो जब रूट फॉर्मेशन में अगर हेल्प कर रहा है, रूट हेयर्स डेवलप हो रहे हैं बहुत सारे
तो what does it mean? That means कि it helps the plant to increase their absorption surface. वो उनको पानी के absorption को इसका मतलब increase कर रहा है. अगर किसी plant की root बहुत healthy है और root hairs formation बहुत fast हो रहा है तो that means कि they absorb better water. And ethylene is also used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapples. फ्लावरिंग अगर कहीं पे नहीं हो रही है आप उनको स्प्रे कर देंगे तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है प्लांट के अंदर. और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पाइन एप्पल, इफ़ यू हैव नोटिस दैट इन केस ऑफ पाइन एप्पल, तो पाइन एप्पल कुछ ऐसा टाइप का फ्रूट होता है एंड इस तरह के बहुत सारे फ्लोरेट्स जैसे आपको चीज़ें दिखते हैं. तो इन सब का साथ में जो है वो बनना ज़रूरी होता है. बनना मीन्स पकना. अगर पक रहे हैं पाइन एप्पल के अंदर ये सारे, तो इनको एक साथ मेच्योर होना क्या होता है, ज़रूरी होता है. अदरवाइज़ आप इसको कैसे खाओगे, एक चीज़ पक गई और दूसरी कच्ची रह गई. तो अगर आप स्प्रे कर देंगे तो सिंक्रोनाइज कर देता है, माने फ्रूट के सारे हिस्से, ये हिस्सा ये हिस्सा ये, ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स राइप इन द सेम टाइम. तो सेम टाइम पे इसका पकने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है. तो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है पाइन एप्पल्स में जब ग्रो करते हैं पूरे के पूरे बाग में. तो फार्मर्स यूज टू spray the ethylene. And there is a name called ethefone. Ethefone, ETHEPHON. So what is ethefone? Actually ethefone is you can say a compound of ethylene which you can purchase from market. तो ethefone के नाम से मार्केट में आता है. एंड इट इज़ आप इसको मिक्स करेंगे पानी में, यू मिक्स इट इन द वाटर एंड स्प्रे ऑन द योर प्लांट. सो इट रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट एंड रिलीज इथिलीन वेरी स्लोली. तो इथेफॉन इज़ अ यू कैन से कॉमर्शियल यूज़ के पर्पज से जो है इथेफॉन बनाया गया. बिकॉज इथाइलिन रेगुलेट सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. तो पीपल और एग्रीकल्चरिस्ट यूज दिस वाइडली. सो द कंपाउंड नोन एज इथेफॉन कम्स इन टू द मार्केट, and from market you can purchase in the name of ethefone. And when you mix it in the water and spray on your plant, it readily absorbs and transported various parts of the plant and release ethylene very slowly. धीमे धीमे करके ethylene निकलता रहता है. and it improve the fruit ripenings. टोमेटो में एंड एप्पल्स में ये फ्रूट राइपनिंग जो होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है. एंड एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है. तो एथेफॉन that means increases the fruit ripening in tomatoes and apples, and also increases the abscission in flowers and fruit. तो fruits and flowers हैं उसमें abscission हो जाता है, that means वो गिर जाते हैं जल्दी से. एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स द फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर्स. क्यूकम्बर में ये फीमेल फ्लावर को इनिशिएट करता है. दैट मीन्स इफ़ यू स्प्रे ऑन द क्यूकम्बर प्लांट, तो क्यूकम्बर प्लांट में क्या होगा, क्यूकम्बर ज़्यादा उसमें फीमेल जो प्लांट हैं फीमेल जो फ्लावर हैं वो ज़्यादा आएंगे. एंड व्हेन फीमेल फ्लावर आएंगे दैट मीन्स क्या होगा, आपकी जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी, जो फसल की पैदावार है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. बिकॉज आपको पता है कि फीमेल फ्लावर्स तो ज़्यादा आ रहे हैं तो फ्रूट ज़्यादा बनेंगे. And now come to the last hormone, phytohormone, that is called abscisic acid, and we all know that it is a growth inhibitor. So it is the only hormone which we know that it is used as a growth inhibitor, and it regulates the abscission and the dormancy. Abscission, now you know that aging of the plant, and dormancy means when plants fail to germinate ना हो तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, dormancy बोलते हैं. एंड इट ऑल्सो इनहिबिट्स द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म. प्लांट्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनको ये स्टॉप कर देता है, ये स्लो कर देता है. और इट ऑल्सो इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन को भी रोकता है. अगर आप स्प्रे कर दोगे तो सीड जर्मिनेट नहीं होंगे. एंड एब्सिसिक एसिड ऑल्सो क्लोज द स्टोमेटाज विच आर प्रेजेंट ऑन टू द लीव. सपोज दिस इज द लीव, तो लीव के जो ये स्टोमेटाज होते हैं इनको क्लोज कर देता है. सपोज विंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, हवा, तो क्या होगा, अगर स्टोमेटा रिमेन ओपन तो सारा पानी वाटर जल्दी जल्दी इवोपरेट हो जाएगा और प्लांट की लीव्स जो हैं आपकी सूख जाएगी, प्लांट की जो है डेथ हो जाएगी. तो इसलिए वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं. सपोज़ अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है, दैट मीन सपोज बहुत ड्राई एयर चल रही है, बहुत गर्म हवा चल रही है और समर्स के दिन है, तो ऑब्वियसली अगर पानी सारा निकलता रहा ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में प्लांट से, तो प्लांट तो मर जाएगा. तो दे क्लोज द स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन टू द लीव एंड दे इंक्रीज द टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ plant to this kind of stress. There are so many kind of stress which are faced by the plants like biotic and abiotic. Two kinds of stress are there. मतलब जैसे कि लैंड में वाटर ना हो या बहुत तेज़, जैसे मैंने बताया हवा चल रही है या सनलाइट बहुत तेज़ है, तो दीज
आर ऑल नोन एज स्ट्रेस फॉर द प्लांट, क्योंकि प्लांट के लिए दैट कंडीशन वॉज नॉट फेवरेबल। तो उन कंडीशंस में प्लांट को ये हेल्प करते हैं ओवरकम करने के लिए, इन कंडीशन से बचने के लिए, बाय द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एंड दैट्स वाई वी कॉल्ड देम स्ट्रेस हार्मोन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेस हार्मोन। So you have to remember this. This is known as stress hormone because in the condition of stress, it helps the plants to overcome that situation, that stressful situation. So abscisic acid helps in the seed development also, maturation and dormancy. तो maturation में, dormancy में, इन सब चीज़ों में जो abscisic acid है वो help करता है. It also act as एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन्स. आप जिब्रेलिन्स के ऑपोजिट आप कह सकते हो, एक तरह से काम करता है, तो एंटागोनिस्टिक हो गया वो. And it is because it used a very wide range, it shows very wide range of effects on plant growth and development. So that's why it is also very important, although it is negative hormone, but it can be but the farmers use it widely for various reasons. As I told you, due to the stress condition, farmers uses so that closure of stomata can occur, and the water loss will be stopped by the plant, and वो plant जो है destroy होने से बच जाता है. तो एब्सिसिक एसिड ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, सीड मैच्यूरेशन, डोरमेंसी, इतने तरह की चीज़ें हैं. तो बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी व्हाट इट कैन डू, बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी एब्सिसिक एसिड help seed to overcome the desiccation and other factors which are not favorable for the growth. For example, जैसे कोई सीड है, अभी वो सीड के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो सीड क्या करता है, उतने टाइम तक के लिए डॉर्मेंट हो जाता है. सपोज ये ग्राम सीड है, तो ये अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, सपोज इसको वाटर चाहिए था, वाटर नहीं है, इसको सनलाइट तेज चाहिए थी, वो भी नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, उतने टाइम के लिए सीड डॉर्मेंट हो जाता है. डॉर्मेंट मीन इट रिफ्यूजेस टू जर्मिनेट, क्योंकि कंडीशन तो ठीक है नहीं. तो अगर जर्मिनेट कर भी गया तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा ये प्लांट. तो ये क्या करेगा, ये डॉर्मेंसी कंडीशन में आ जाएगा और ये ग्रो ही नहीं करेगा until and unless favorable condition will not arrive. जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं, देन इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग, फिर इसमें से लीव्स वगैरह जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है. अब वो इन कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है. तो लाइक दैट. So now you can able to understand by this all discussion that these plant growth hormones are very much important in every phase of plant's life. Either it is a differentiation part of their life or development and growth processes of their life. Those they play very important role, and they also sometimes complementary or antagonistic to each other. Complementary means दोनों को कोई कोई हार्मोन ऐसे हैं जो एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, एंड कोई हार्मोन्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑपोजिट काम करते हैं. तो अगर ऑपोजिट काम करते हैं यू कैन कॉल देम एंटागोनिस्टिक. अगर वो एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं यू कैन कॉल देम सिनर्जिस्टिक, माने सेम इफेक्ट शो करने वाले. तो दैट आर नोन एज सिनर्जिस्टिक हार्मोन. एंड दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन, phytohormone or plant hormone. So you have to remember that role of phytohormones is only वन काइंड ऑफ इंट्रेंसिक कंट्रोल. मतलब केवल ये एक तरह का ही नहीं है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कि इंपॉर्टेंट बस इससे ही हो जाएगा. इंट्रेंसिक मीन्स इंटरनल, अंदर से जो ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हैं वो तो ये हैं, बट यू ऑल्सो नीड सम जीनोमिक कंट्रोल and extrinsic factor. That means for the growth of a plant you require 3 kind of control. ठीक है, एक ही चीज़ बच्चों नहीं कंट्रोल कर सकती कि केवल ये फाइटो हार्मोन्स कंट्रोल कर लेंगे. दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक, मीन्स अंदर से, है ना, अंदर के फैक्टर्स जो उसको कंट्रोल करते हैं. बट इनके साथ साथ आपको 2 और फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड जीनोमिक कंट्रोल. दैट मीन्स जीन, उसकी जेनेटिक्स कैसी है. कोई प्लांट शॉर्ट है तो उनके आगे वाली जनरेशन भी शॉर्ट होगी केवल इन हार्मोन्स की वजह से, तो वो टॉल नहीं हो जाएगी. एंड ऑल्सो एक्सट्रेंसिक फैक्टर. एक्सट्रेंसिक माने फैक्टर विच आर प्रेजेंट आउटसाइड. अब आउटसाइड वाले फैक्टर कौन से हो जाते हैं, जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लाइक टेम्परेचर, लाइट एंड यू कैन से, और वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स होती हैं, मॉइस्चर, ये सब चीज़ें जो हैं
तो ये भी रिक्वायर्ड होती हैं कि प्रॉपर तरीके से जो आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकें। तो इनको भी साथ में बाकी के जो फैक्टर्स मैंने बताए, जेनेटिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लाइट एंड टेम्परेचर इसका रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है इन द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। अगर फ्लावरिंग में हार्मोन कितने भी आप दे दो, बट देर इज़ नो प्रॉपर लाइट, देर इज़ नो प्रॉपर टेम्परेचर, दे विल नॉट जर्मिनेट, दे विल नॉट फ्लावर। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों की, ओनली नॉट दीज फाइटो हॉर्मोन्स आर इनफ फॉर द healthy, or you can say proper growth of a plant. You also need certain other things which I told you right now. So this chapter is finished here, and you make short notes of various hormones, various phytohormones which we have discussed today, and this is all.